Good day everyone. Today we'll be continuing our discussion with the solution chapter. So in the last class we were discussing about osmosis. Today we will start with the colligative property, that is osmotic pressure. So आज हम osmotic pressure के बारे में समझेंगे. Last class मैंने आपको osmosis क्या होती है ये explain किया था. So let us start osmotic pressure. Osmotic pressure. Now, in order to understand this, let us draw a setup. Suppose there is a setup which consists of two containers joined by a narrow tube, or a tube you can say. Now these are the two containers. In one container solvent is present and the other container solution is present. For example, this container contains solvent and this container contains solution. So कल हमने डिस्कस किया था सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के बारे में, तो आज भी उसी का एग्जांपल लेते हैं. सॉल्यूशन किस चीज का है? सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर का सॉल्यूशन आपने एक साइड रखा है एंड द अदर साइड वी हैव केप्ट द सॉल्वेंट एंड इन दिस केस सॉल्वेंट इज वाटर. सो this is the situation. These two containers are connected by this tube, and in this tube there is a membrane, and this membrane is a semi-permeable membrane. This is a semi-permeable membrane. तो ये semi-permeable membrane दोनों को सेपरेट करिए. अब अगर इस कंडीशन में इसको रख दिया जाए कुछ देर, if you leave it aside for some time, तो क्या होगा? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट इधर से इस साइड होगा, इसमें क्या होगा? द लेवल ऑफ सॉल्यूशन विल गो अप, विल राइज. इफ आई वांट टू स्टॉप व्हाट? इफ आई वांट टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स दिस सॉल्यूशन साइड, तो मुझे क्या करना होगा? मींस आई हैव टू स्टॉप दिस लेवल फ्रॉम इंक्रीजिंग. मुझे इस लेवल को ऊपर उठने से या ऊपर बढ़ने से रोकना है. सो व्हाट कैन आई डू? मैं यहाँ पे एक पिस्टन अरेंजमेंट फिक्स कर दूंगा. आई विल फिक्स द पिस्टन अरेंजमेंट. और इसके ऊपर कुछ प्रेशर लगाऊंगा. तो इफ आई विल exert some pressure equal to, or let me put it like this. Suppose solvent molecules इस साइड से, सॉल्वेंट के साइड से सॉल्यूशन के साइड मूव करने की कोशिश करेंगे. दे विल ट्राई टू, बिकॉज ऑफ विच दिस लेवल विल ट्राई टू इंक्रीज. ये लेवल ऊपर जाने की कोशिश करेगा. अगर मैं सिर्फ उतना प्रेशर लगाऊं, इफ आई exert exactly the same amount of pressure which is required to prevent this level from going up, मतलब मैं एग्जैक्टली उतना प्रेशर लगाऊंगा जितना प्रेशर इसको या इसके लेवल को ऊपर बढ़ने से रोक सकेगा. तो इन दैट केस द अमाउंट ऑफ प्रेशर जो मैं प्रेशर लगा रहा हूं वो क्या कर रहा है? इट इज प्रिवेंटिंग ऑस्मोसिस. वो ऑस्मोसिस को रोक रहा है. सो दैट प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर. सो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर which is exerted to prevent osmosis. जैसे मैंने यहाँ प्रेशर लगा के इसके लेवल को ऊपर बढ़ने से रोक दिया, तो ये ऊपर बढ़ता क्यों? Why it will go up? Because of osmosis. So I have prevented osmosis by applying this pressure, and the pressure which I will apply will be equal to osmotic pressure of the सॉल्यूशन. याद रखिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द
solution. So this is the osmotic pressure. So osmotic pressure can be defined as the amount of pressure which is required to prevent osmosis. Now osmotic pressure को calculate करने के लिए mathematical formula है. So let me rub this thing. I think अब आपको osmotic pressure समझ में आ गया होगा कि क्या होता है osmotic pressure. So osmotic pressure is denoted by, generally osmotic pressure is denoted by pi. Osmotic pressure को दिखाया जाता है denoted by pi, this pi. Okay, osmotic pressure is denoted by pi, and osmotic pressure of a solution is directly proportional to molarity of solution. याद रखिएगा, molarity of solution. Osmotic pressure is directly proportional to molarity of solution and is directly proportional to temperature of solution. So osmotic pressure इन दो चीजों पे डिपेंड करता है, किस चीज पे, सॉल्यूशन की मोलारिटी और टेम्परेचर पे, और दोनों पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. सो इन दिस फॉर्मूला जनरली यू विल फाइंड द नोटेशन मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डिनोटेड बाय सी से डिनोट करते हैं मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन को इन द टेक्स्ट बुक, एंड टेम्परेचर इज एज यूजुअल डिनोटेड बाय टी. सो हम क्या लिख सकते हैं, एक ही कंबाइंड या एक ही रिलेशन में इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं. ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर लिखा जा सकता है. नाउ यू नो दिस इज अ रिलेशन. आपको एक मैथमेटिकल फॉर्मूले की जरूरत है टू सॉल्व क्वेश्चन. सो टू कन्वर्ट दिस रिलेशन इनटू अ इक्वेशन हम क्या करते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस करते हैं, and that is R. So R is here. R क्या है यहाँ पे, R is equal to gas constant. R क्या होता है, gas constant. So this formula is equal to CRT. मैक्सिमम बुक्स में ये RCT या CRT आपको इस फॉर्म में देखने मिलेगा, where osmotic pressure is equal to what? Is equal to molarity of the solution into gas constant into temperature of the solution. Now यूनिट होती है प्रेशर की, वो क्या हो सकती है, या तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जनरली स्टैंडर्ड यूनिट्स जो होती हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या ATM लिया जा सकता है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यू कैन ऑल्सो कीप इट इन बार. सो द यूनिट ऑफ, और जो वैल्यू होगी R की, जो वैल्यू होगी R की, वो किस चीज पे डिपेंड करेगी. R की बहुत सारी वैल्यूज है, देयर आर मेनी वैल्यूज फॉर गैस कांस्टेंट. सो द वैल्यू ऑफ R which you will be using to solve the question will depend on what? Will depend on the pressure unit which is used in the question. So सबसे पहले देख लेते हैं कि R की यूनिट क्या क्या हो सकती है. जैसे कि पाई, प्रेशर की यूनिट क्या क्या हो सकती है, प्रेशर कैन बी आइदर पुट इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बार. उसी तरह मोलारिटी की यूनिट क्या होती है, मोल्स पर लीटर. टेम्परेचर जो यहाँ है दैट इज सब्स्टिट्यूटेड इन केल्विन. टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में रखिएगा. सो डिफरेंट यूनिट क्या क्या है, जो पाई की यूनिट क्या हो सकती है, पाई की यूनिट हो सकती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बार. ये स्टैंडर्ड यूनिट हो सकती है प्रेशर की. सी की यूनिट क्या हो सकती है, सी की यूनिट हो सकती है मोल पर लीटर. मोलारिटी इज मोल्स पर लीटर, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. एंड टेम्परेचर की यूनिट क्या हो सकती है, केल्विन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर. सो अगर इन तीनों की यूनिट के अकॉर्डिंगली R की यूनिट क्या होगी ये पता चलेगी. सो लेट अस सी R की यूनिट क्या क्या हो सकती है, उसके हिसाब से R की क्या क्या वैल्यूज आप क्वेश्चन में यूज करेंगे, यू कैन सी दैट. सो लेट अस सी. सो पाई इज इक्वल टू CRT. पाई की यूनिट क्या हो सकती है, एटमॉस्फेयर या बार ले सकते हैं. दोनों एक साथ नहीं लेना है, दोनों, वी डोंट हैव टू टेक बोथ, आइदर ऑफ देम इज यूज्ड. दीज आर स्टैंडर्ड यूनिट्स, सो डोंट थिंक
I will put pressure in atmosphere also, and I will put pressure in bar also in the same formula. No. So C की यूनिट क्या होगी? मोल्स पर लीटर. R की यूनिट क्या है नहीं पता हमें. टेम्परेचर की यूनिट क्या है? केल्विन. सो यहाँ से अगर आप देखेंगे R की क्या क्या यूनिट मिल सकती है. R की यूनिट हो सकती है, अगर हमने इसको प्रेशर को एटमॉस्फेयर में लिया तो R की यूनिट क्या हो सकती है? लीटर, लीटर, एटीएम, मोल इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स. एटीएम यहाँ रह जाएगा, लीटर इस साइड आ जाएगा, केल्विन नीचे आ जाएगा, मोल नीचे आ जाएगा. तो मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स. नाउ यहाँ बार भी मत रख दीजिएगा, बिकॉज ओनली वन प्रेशर यूनिट यू हैव टू टेक एट अ टाइम. ओके, डोंट कंफ्यूज दैट बोथ द यूनिट्स आर केप्ट एट द सेम टाइम. या अगर आपने इसकी यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर न लेकर के बार लिया तो क्या हो जाएगा? लीटर, बार, मोल इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स. नाउ R की जो यूनिट होती है लीटर, एटीएम, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स के फॉर्म में होती है 0.0821, और लीटर, बार, मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स के फॉर्म में जो होती है दैट इज 0.083. थोड़ा सा चेंज होता है, थोड़ा सा ही चेंज होता है, ज्यादा नहीं, बट याद रखिएगा बिकॉज दीज यूनिट्स आर समटाइम्स और मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे विल नॉट गिव यू द वैल्यू ऑफ R इन द क्वेश्चन. तो R की वैल्यू क्या है ये आपको खुद सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा क्वेश्चन में, एंड इट विल डिपेंड ऑन द यूनिट ऑफ प्रेशर. बिकॉज बाकी तो वॉल्यूम की यूनिट लीटर हो जाएगी, दिस टेम्परेचर की यूनिट केल्विन हो जाएगी, बट प्रेशर की यूनिट क्या है उसके हिसाब से R की यूनिट आपको या R की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करना है. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर. अब इस ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज, या जनरली इसका यूज किस लिए होता है, इस फॉर्मूले का या इस रिलेशन का? दिस रिलेशन इज वेरी यूजफुल टू फाइंड आउट मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ डिफरेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मासेस को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला या ये मैथमेटिकल रिलेशन बड़ा यूजफुल है. और जितने हम क्वेश्चंस देखेंगे दे विल बी आल्सो सम ऑफ दैट टाइप ओनली, कुछ उसी तरह के क्वेश्चंस रहेंगे. तो हाउ यू कैन यूज दिस फॉर्मूला? आप इस फॉर्मूले को कैसे यूज कर सकते हैं? सपोज पाई इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. P मतलब क्या? सपोज द I will prepare the solution by dissolving some solvent B. Solute B. I will prepare the solution by dissolving some solute B. So molarity of the solution will be, C represents molarity of the solution, so it will be number of moles of solute, which is B, divided by volume of solution in liter, into what? Into R into T. अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आप जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनीथिंग इज व्हाट? गिवन मास ऑफ सोल्यूट, दैट इज गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की जगह ये सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है. सो वी कैन राइट गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. ये मोलारिटी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें होगा? लीटर्स में होगा, याद रखिएगा. इंटू R इंटू T इज इक्वल टू पाई, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब इस फॉर्मूले में देखिए, अगर आपने एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर कर लिया, एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर कर लिया बाय द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट, और आपने कितना सॉल्यूट डिसॉल्व किया है उस सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए, ये that will be known to us, क्योंकि we are preparing the solution, so we will know how much of solute is put to prepare the solution. तो हमें WB भी पता रहेगा, which is the mass of solute used to prepare the solution. Molecular mass हमें solute का नहीं पता है, it is an unknown solute, हमें उसका molecular mass निकालना है. क्या हमें solution का volume पता चल जाएगा? Obviously, if you are preparing the solution, you will know the volume of solution. कितना solution आपने prepare किया है ये आपको पता रहेगा.
R की वैल्यू मैंने आपको बता दी कि यू कैन यूज द वैल्यू ऑफ R डिपेंडिंग आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किससे मेजर करें, और आप सॉल्यूशन का टेम्परेचर भी इजीली मेजर कर सकते हैं बाय द थर्मामीटर। सो इस फॉर्मूले में सारी चीजें आपको पता रहेंगी एक्सेप्ट दिस मॉलिक्यूलर मास ऑफ B विच इज द सोल्यूट। तो अगर आपको किसी चीज का मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तो दिस फॉर्मूला इज वेरी हैंडी, ये बहुत काम आता है टू prepare or to find out the molecular mass of the unknown solute। So हमें रिलेशन पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। we will be discussing some questions on this topic in the next class। So today we will keep it here till here only, we will continue further in the next class। Thank you so much।